Hello, everyone. Hi, my dear students. I think we're live now. Hi, bachon. Good evening. I know you all have been eagerly waiting for me. Hi, Tisha. Sorry. Hi, Chirag. Hi, Murugan, AD, Arvind, Gautami, Ashutosh. Good evening. Yes, I know. I hope you all are equally excited because I am very excited for this session, है ना? Good evening, everyone. CMA, CA, Vishali. Wow. नाम में भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है ना? Yes. Give me just 1 minute. Good evening, good evening. Good evening, Wanjangi. Wow, unique name. Nivedita, Ashutosh, Sam, Krishna, Gomti, Alok, Manoj, Soumya, Yash. I think thank you for the session. You're most welcome. बहुत मजा आने वाला है. Definitely you are going to enjoy this. है ना? Okay. Good evening, Tripti. Who can't be excited for your session, ma'am? How sweet of you. आलोक मनोज वंदना चलो बहुत बढ़िया ओके एक चीज मैं पहले थोड़ी सी क्लियर कर दूं बिकॉज आई हैव बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट्स because this is a CMA final session and I take my classes in English language also and in a mix of Hindi and English. तो सबसे पहली बात कि ये लैंग्वेज का जो आप लोग डिस्प्यूट निकालते हो मैम इंग्लिश मैम हिंदी ये सब कुछ नहीं करना है. The session is going to be in a mix of Hindi and English, but obviously the questions are in English. So the ones who are unable to understand few Hindi words, it doesn't matter. You're here to study and you will get a fruitful and productive session from your study point of view. Take care. Thanks a ton, ma'am. Lots of love from Maharashtra. Lots of love to everyone. Hannah from Lucknow. Okay. Watching you from intermediate, great. And I'm happy to see that now you're in finals. So, बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास ऐसे बच्चे. In fact, the first message I think which I read from Tisha Agrawal is again my student from CMA Inter only. है ना संस्कृत अरे यार ये उसके लिए फिर मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा. I'll not be the best person to translate things in English. Okay. You're not taking classes, you're not opting for your exams in June, but you're taking classes on practice purpose. Great. See, it doesn't matter whether you are appearing for your examination in coming June or not. If you have prepared certain topics, if you have studied, prima facie study करके आए हो, then of course you can attend this MCQ session to check and test कि हाँ ठीक direction में जा रहा है या नहीं जा रहा है. Okay. Now before I begin, can someone tell me? Oh, great. Can someone tell me the exact number of days left for your exams? Anyone? Our exam, it's commencing from law only, right? तो 11th June वो date है. कितने दिन बचे हैं? Exactly कितने दिन बचे हैं? Calculate करके बता दो अगर नहीं calculate किया हुआ है तो. हाँ, hi, hello, you made me fall in love with law. Great, thank you. कहाँ हो 24 फाइनली समवन रिप्लाइड है ना गोजो हटके है ना नाम भी हटके है राइट. तो ये जो बोल रहे हैं ना 24 अगर कैलकुलेट करके बोल रहे हो तब तो जाने दो बट अगर सच में आपके जहन में बैठा हुआ है तो ओनली 24 डेज आर लेफ्ट देन माय डियर यू आर दैट AIR मटीरियल. आप समझ लो फिर एक एक दिन काउंटिंग हो रही है पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ काउंट डाउन ही कर रहे हो एक एक दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए है ना. हाँ ठीक है. And if you are utilizing your days properly or not, we'll get to know after this session. But before we begin the session, what you have to do is like, है ना. तो कुछ rules हैं मैं बताऊंगी इस session के और rule number 3 मैंने सबसे पहले बता दिया है. Rule number 3 is that you have to like the session before we begin, है ना. चलो okay. Now सब लूंगी यार. यू स्टे ट्यून्ड. सुपर 50 जो जो आपकी डिमांड है ना एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टेक एंड एकदम सॉलिड फुल ऑन प्रिपरेशन होने वाली है. व्हाट यू हैव स्टडीड इज फाइन. कंसेप्चुअल लर्निंग गेनिंग हो चुकी है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज आंसर राइटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग MCQs अमेंडमेंट्स जो भी है सब करेंगे ठीक है. सो डोंट वरी एट ऑल. अब ये सब हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. होप यू हैव रिवाइज्ड इकोनॉमिक लॉज वेल. With me, I have a set of 60 questions.
तो ये एक जो फाइल है ये, अच्छा इफ यू आर नॉट इन लाइन विद द अपकमिंग सेशंस, ये एकदम प्लीज स्क्रीनशॉट लेके फोटो वोटो खींच के कहीं नोट रखो। ये 3 एमसीक्यू सेशंस हैं आपके लिए। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक लॉज का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इकोनॉमिक लॉज एमसीक्यू चैलेंज सेशन एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट जस्ट विद इन 5 मिनट्स, है ना। पहला सेशन है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। आई शुडंट शो यू द क्वेश्चंस बट आई हैव विद मी द सेट ऑफ 60 क्वेश्चंस, जिसमें से 40 questions, first 40 questions we are going to take up today as the challenge of during class, and the remaining 20 questions are very easy and mostly study material or MTP वाले questions है which you can easily do, ठीक है। तो screen पे you will be seeing the question and the session is going to be poll based. Listen to me very carefully. Examiner के वो instructions होते हैं, तो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और कुछ instructions में दे रही हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से सुनो। ओके, रूल नंबर 1, एंश्योर दैट यू गिव एवरी आंसर, ठीक है। आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू सिट विद अ पेपर एंड पेन। यू डोंट हैव दिस पीडीएफ विद यू राइट नाउ। ऑल यू हैव टू डू इज सिट विद अ पेपर एंड पेन। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से you think that the answer should be A, so write A, and after the answer is disclosed through poll, you will strike a cross or a tick. Right, that's what you have to do. At the end of the session you will total कि मेरे 40 में से कितने आए। Okay, so this is that you have to do during the entire session. Rule number 2, no writing of answers in the chat. भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले कुछ आंसर दिख जाते हैं तो दे गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो इवन इफ यू नो द आंसर, ऑल यू हैव टू डू इज अटेम्प्ट थ्रू द पोल। इफ यू कैन नॉट आंसर थ्रू द पोल तो आप लिख लोगे, ठीक है। ओके, now again rule number 3, like the session before we begin, right? And as Tisha is saying, show some love to Shivangi ma'am, है ना। चलो, नहीं प्यार मुझे मेरे बच्चे बहुत करते हैं, मुझे पता है। I don't need this validation through likes, but yes of course your likes motivate us to do better, ठीक है। Inter student Sudhanshu, hi, great to hear from you. Okay, हाँ, we'll do everything. चलो, I hope you have noted all the rules. Okay, now there are many MCQs in study material also, जिसके आंसर्स आपको इनकरेक्ट दिखेंगे. सो इफ यू कम अक्रॉस एनी सच क्वेश्चन और यू हैव एनी सच कंफ्यूजन, देन आफ्टर द सेशन हैज एंडेड आप क्या कर सकते हो, यू कैन ड्रॉप इन द कॉमेंट कि मैम ये वाले क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट में ये दिया एंड आई फील दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. मे बी मी और योर पियर्स कैन हेल्प यू एंड क्लियर द कंफ्यूजन. नाउ यू वांट दिस पीडीएफ, किसको किसको पीडीएफ चाहिए? कैन वी गेट दैट पीडीएफ मैम? पीडीएफ चाहिए? चलो, you'll get the PDF, but of course I'm not sharing it with you right away. ठीक है, पहले सेशन फिर PDF. That is for a reason, and if you trust me, then follow it. Okay? चलो, याद नहीं हो रहा उसकी सबकी ट्रिक्स टिप्स सब चीजें बताऊंगी how you should do, but now we are going to begin with the session. Of course, anytime, all my Lucknow students, you're most welcome to my place. Anytime you can come and we can have a cup of coffee together, right? चलो, हाँ, मिलेगी मिलेगी सबको पीडीएफ मिलेगी, इंतजार का फल मीठा होता है. Okay, so here we begin. We have to begin the session. चलो, बस बहुत चिट चैट हो गई. Yes. So here we go with the first question. Come on everyone, the poll is now going to be live for the very first question. Please make the poll live, right? The first question is, which of the following is not included in the definition of financial asset according to SARFAESI? Mortgage of immovable property, interest in the security, marketable securities or financial assistance. पहले क्वेश्चन ने शायद ऐसे घुमा दिया होगा, है ना. देखो, इसमें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के भी क्वेश्चंस है, एमटीपी के भी क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर पेपर के भी क्वेश्चंस है और कुछ मेरे वो जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी है. तो दिमाग थोड़ा थोड़ा किसी में घूम भी सकता है, बट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आई हैव केप्ट सम क्वेश्चंस इजी, बट सम क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट आल्सो. बट आई वांट यू टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, है ना. SARFAESI, सी SARFAESI, व्हाट इज दिस एक्ट मेंट टू बी? बैंक्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ना कि भाई बैंक ने लोन दे दिए, लोन डूब गए, हाउ टू रिकवर दैट, राइट. वन इज द नॉर्मल रिकवरी मेथड दैट यू कैन सेल द सिक्योरिटी जो भी आपने की है एंड यू कैन रिकवर. द अदर इज
रिकंस्ट्रक्शन मेथड, जहां पे बैंक्स में सेल देयर एसेट्स कि हाँ इससे मुझे इतना पैसा लेना है, बैंक मुझे इससे 10 करोड़ रुपए लेना है, एक काम करो आप मुझे ना 5 करोड़ ही दे दो, इससे आपको जो रिकवरी करनी है करो, क्योंकि हमें तो लग रहा था हम तो रिकवर कर नहीं पाएंगे एंड बैंक के तो पैसे डूब ही जाने वाले, राइट? सो दैट इज हाउ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज work, and that is what SARFAESI is meant to be. It's passed to strengthen the loan recovery system, right? चलो भाई, क्या लग रहा है? Let me see. क्या लग रहा है आप? Why is this poll not working for me? Oh my God, such mixed reactions. हाँ, पहला क्वेश्चन गूगली हो गया क्या? ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 14% एंड ऑप्शन डी लग रहा है 54%. भाई कुछ तो याद करो. हाँ, काश ऐसा होता. इस सवाल के 5, अरे बाप रे, बड़ा महंगा सवाल कर दिया तुम लोगों ने तो. फाइनेंशियल एसेट बेटा, ट्राई टू रिमेंबर, इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. अच्छा मैं तो आंसर ही बोल दिया आप लोगों को शायद. नहीं 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 नहीं. ओके, एक मैं छोटी सी आपको हिंट देती हूं. Because it is the first question and a little tricky one, तो I am going to help you and support you. फाइनेंशियल एसेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे डेट होता है ना, या बैंक ने एडवांस दिया, ठीक है. मॉर्टगेज होता है. मॉर्टगेज किसका मैम? इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का राइट या इंटरेस्ट इन द सिक्योर्ड एसेट, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन डेट, या राइट और इंटरेस्ट इन इंटैंजिबल एसेट, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लेंड किया है बैंक ने. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट. भाई वो भी तो फाइनेंशियल एसेट ही है. फाइनेंशियल एसेट की ही तो रिकवरी के लिए आइडियली हम बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल एसेट क्या नहीं है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ओके, सो ऑफ कोर्स दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन एंड इट शोज कि कितना डिटेल में पढ़ा है ना. यहीं पे वो कंसेप्चुअल वाली जो चीज आती है ना, आ जाता है. याद किया हो तो सुपरफिशियल तरीके से तो सब एक जैसा लग रहा है. चलो, ओनली एंड ओनली 17% स्टूडेंट्स का ये सही आया है. 18, 17 ऐसा ही कुछ चल रहा है. और फिर जब रिजल्ट आता है 17% तो हम क्रिप करते हैं मैम इतना कम रिजल्ट क्यों आता है ना. बट गुड दैट यू ट्राइड, है ना. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं बिकॉज द सेकंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजी, है ना. तो इस पोल को हम एंड करते हैं. मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैव वोटेड फॉर दिस एंड आई एम हैप्पी टू सी योर पार्टिसिपेशन. चलो, हाँ, पहला गलत हुआ कोई बात नहीं. चलो, दूसरा सही होगा. दूसरा सही करके मानेंगे हम. ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास बिफोर आई मूव फर्दर. मैम एमसीक्यू में जस्टिफिकेशन लिखना है क्या? तो पहले तो क्या होता था, आपको ऊपर लिखा रहता था कि MCQ में mark the correct option and provide justification for the same. But in the recent attempt, of course, and in the MTP, they hardly provide this. But the MCQ is still of 2 marks. तो अगर 2 नंबर का MCQ है जस्ट फॉर अ टिक मार्क, राइट, मतलब सिर्फ वो भरने के लिए, उसके लिए नहीं मिल सकता है, ठीक है. सो जस्ट फॉर मार्किंग द ऑप्शन यू कैन नॉट बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स. दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. सो माई एडवाइस वुड बी, इवन इफ दे डोंट से दैट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन, यू गो अहेड एंड प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन, ठीक है. If it is a 2 mark question, 1 mark is for marking the correct option and the second one is for providing justification. I hope it is clear. चलो, अरे क्वेश्चन 2 पढ़ने के पहले 146 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी वोटेड. भाई तुम लोग क्या करने वाले हो? टेक ओवर मीन्स बाइंग अ फ्यू शेयर्स, एक्वायरिंग 10% शेयर्स, एक्वायरिंग शेयर्स which will give control over the management or none of the above. चलो, इसको सही करके दिखाना है. ओए होए, लग रहा है कि इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस है ना वो बड़े अच्छे से रट के आए हो. हाँ, अभी तक जितने वोट्स मुझे मिले हैं, बाय फार 178 वोट्स, एंड आई कैन ऑलरेडी सी 92% स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. राइट, देखो टेक ओवर जब हम वो पढ़ते हैं, मैंडेटरी ऑफर पढ़ते हैं या वॉलंटरी ऑफर पढ़ते हैं, तो मैंडेटरी ऑफर में भी व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ पर्सन प्लस पर्संस एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, राइट, PAC. जैसे ही दे हिट द मार्क ऑफ 25%, दे हैव टू गिव अ मैंडेटरी ऑफर टू एक्वायर. मतलब मैंडेटरी ऑफर देते हैं ना पब्लिक को कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं टू एक्वायर 26%. तो कहाँ क्या कर रहे हैं वो, क्या करना चाह रहे हैं?
What is takeover? Acquiring control. Control कैसे आता है भाई when you have the majority, right? So it's not about buying a few shares and there's nothing for 10%. आपका 25% mark hit करता है, then you give an offer to acquire 26%, right? So takeover is what? Acquiring control. So very easy question. हाँ, चलो. Well done, my dear students. ये तो देख के मेरा दिल खुश हो गया. चलो, question number 3. Question number 3. The poll is live, and what is the question? Let's see. Appointed day means following day after expiry of 15 days from day of acceptance of goods, following day after expiry of 10 days from day of acceptance of goods, day of acceptance of goods, or none of the above. Right? क्वेश्चन किस चैप्टर का है भाई? चैट में लिख सकते हो, जिसको समझ में आ रहा है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे never mind. The question belongs to the chapter of MSME. Very simple thing that in MSME there is a rule. If you are taking goods from MSME, you have to make payment according to or within the time limit which is agreed in the agreement. But that cannot exceed 45 days. If there is nothing in the agreement, you have to make payment before the appointed day. So यहाँ पे appointed day क्या होता है? That is important. So we have read the definition of appointed day. ओए, हाँ, we have read the definition of appointed day. Na. Come on now. Very good, very good. So most of you are giving me the correct answer कि at least chapter कौन सा है ये तो समझ में आ रहा है ना? आंसर कौन सा है? Appointed day. Following day after expiry of 15 days from day of acceptance of goods. So the correct answer, my dear, is option A. 62% students, 219 votes so far. भाई 300 बच्चे लगभग देख रहे हैं, तो बाकी लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो, अगर कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाँ, but otherwise please try to participate as much as you can. Okay, chalo. Moving to question number 4. Come on everyone. Moving to question number 4. Let's end the poll of question number 3 and make the poll of question 4 live. At the time of IPO, the issuer has to have a CFO, MD, designated compliance officer, or at least one independent director. Now this is a question I think some student asked me, तो maybe ये institute की book में कहीं कुछ गलत दिया हुआ है या फिर कहीं और दिया है. There is a duplicacy and at one place the answer is correct and at the other place the answer is incorrect. This happens a lot of times. You have to trust your own ability, you have to trust your own knowledge. क्योंकि 10 में से मैं आपको बताऊं 7 बार ऐसा होगा कि आप सही होगे, ठीक है, और इंस्टीट्यूट गलत होगी. वो भी कम ही कह रही हूं मुझे लगता है. I cannot see the poll of question number 4. Okay, never mind. Yes, now I can see 196 votes so far. भाई चलो, come on everyone. नहीं, इसमें भी आप लोगों को सॉलिड कंफ्यूजन है. प्लीज वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन दैट वॉट एवर क्वेश्चन यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई, या आपके जो गलत होंगे, वंस यू गेट दैट पीडीएफ प्लीज मार्क दोज क्वेश्चंस एंड रिपीट इट. कल परसों रिपीट इट 2-3 टाइम्स. अभी हम 4th क्वेश्चन पे है. इट इज फ्रॉम सेबी रेगुलेशंस वी अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर. वो ही क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं कि आर यू कंप्लाइंग विद ऑल द लॉ. जो इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस होते हैं उनका रिड्रेसल भी करते हैं. सो वी नीड अ डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर. ओके, 231 votes, only 49% students have given me the correct answer. थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो रही हूं.
चलो अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट कभी कभी फोकस नहीं होता है तो बच्चे इसको कुछ गलत कर देते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा लेट मी नॉट गो सो हाई. Question number 5. We'll take a deep breath, read the question very carefully, and then try to answer it. HiSys Limited is a company. Okay. Is a company registered in Singapore. It issues debenture to citizen of Singapore. Under the Indian law, the shares, or rather I should write, the debentures are foreign security, Indian security, any of the above or none of the above. Come on everyone, focus and answer. Under the Indian law, the debentures are. You can relate this concept to the concept of foreign company. There is a company which is incorporated outside India. It's working outside India. Is it a foreign company for us? Is it a foreign company for us or is it an Indian company for us? Well, it is neither a foreign company nor an Indian company. When will it be treated as a foreign company? When the company incorporated outside India establishes a place of business in India. Right? So what is a foreign security? Foreign security is something which is drawn in foreign currency. It may be redeemable or repayable in Indian currency also. Right? That is also a foreign security. Right? But then there has to be some relation, some connection. If it is issued to the people out here, then it is foreign security. If it is outside India, issued to people outside India, how are we concerned? Why will we even give it a term कि ये foreign security है? भाई नहीं चाहिए हमें, तुम बाहर के हो, बाहर रहो. You get my point? Okay, so now I think you would want to change your answer. Well, the correct answer to this particular question is none of the above. Question number 5, option D, none of the above. Right? Chalo. I'm glad to see that at least participation in votes is increasing. Come on, let's move to question number 6, everyone. Now, this is a very easy question and I want to see कि कम से कम 90% students इस वाले question को सही answer देने वाले हैं. Question number 6. According to Banking Regulation Act 1949, banks pay dividend after taking specific approval of whom? A very simple question of Banking Regulation Act. Banks pay dividend after taking approval of central government, board of directors, chairman or RBI. Come on, this has to be correct. You are about to reach my expectations. 87% लगभग बच्चों ने मुझे correct answer दे दिया है. 88. Come on everyone, you can do it. I want हाँ कम से कम 90% students ये सही आंसर देंगे. Okay, so 193 votes so far and the correct answer, because this is an easy question, I'm not taking a lot of time. The correct answer, my dear, is RBI. Madam, this MCQ enough for exam? Come on, भाई बच्चे इतने सारे हैं, क्या ये बता सकते हैं? मेरा दिल खुश करने के लिए नहीं बोलना हाँ हाँ enough है, enough है. Nothing is enough for exam, nothing at all. Nobody in the world can tell you कि बस ये enough है for exams. नहीं. The point is, what is your target? If you want to just pass, तो भाई आप सिर्फ questions करके जा सकते हो, and if you are lucky, then might be the same questions will be repeated and you will pass, and then you will also say this was enough for exams, but nothing is enough, trust me. So what you have to do is study the entire material. Whoever जो भी आपको guide कर रहा है उनका पूरा material पढ़िए, उनके पूरे questions पढ़िए. Read the study material, right? Study material मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, बट हाँ उसके जो क्वेश्चंस है, डू दोज क्वेश्चंस. आपके जो एमटीपी होते हैं आप वो करिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन, वो आपको कंपाइल करके दे देते हैं, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं. ठीक है, हाँ राइट. चल, so I hope you have got the answer. Moving to the next question. Question number 7, everyone. Come on, again a very easy question. A unit has investment
in plant and equipment, rupees 55 crores, and turnover of 300 crores, it will be classified as micro, small, medium, or none of the above. Right? We have a composite criteria for this. What is the composite criteria? That plant and machinery has to be within this limit and turnover has to be within this limit. If I talk about micro, 1 crore and 5 crore. If I talk about small, then 10 crore and 50 crore. If I talk about medium, then 50 crore and 250 crores. तो ये तो भाई मीडियम से भी एक्सीड कर रही है. 55 crore and turnover is 300 crore, which exceeds 250 crore. So can it be classified as micro? No. Can it be classified as small? No. Can it be classified as medium? The answer is no. तो भाई क्या होगा करेक्ट आंसर? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ. इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, और वो भी हाँ सिर्फ 36% यहां पे मेरे प्यारे संस्कारी बच्चे बैठे हैं जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं. चलो भाई, नन ऑफ द अबव. फिलहाल यही आंसर देना है, ठीक है. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. आई टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू टेल यू, सो विल डिस्कस दैट लेटर. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Audit committee shall review compliance with the provisions of SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015 at least once in every quarter, half yearly, financial year, or it is not required at all, and shall verify that systems for internal control are adequate and are operating effectively. Now, this is again a question which you might not be able to understand the background and the framework. So, I'll give you a slight hint. When I am talking about insider trading, वो तो समझ में आ रहा है कि ये कहाँ का question है? Of course, ma'am. SEBI insider trading regulations जो है हमारे वहाँ का questions है. इसमें आती हैं बहुत सारी चीजें और इसमें आता है एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसके बारे में हमने पढ़ा है. इनफैक्ट एज अ शॉर्ट नोट इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या होता है? वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लिस्टेड कंपनीज की यू मस्ट हैव अ विसल ब्लोअर पॉलिसी, है ना, आपके पास होनी चाहिए. इनफैक्ट कोई सस्पेक्टेड लीक होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएसआई. कैन समबडी टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएसआई? Come on, through chats. किसी को यूपीएसआई का फुल फॉर्म याद है? चलो याद करो यार. कोई बात नहीं. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू प्रोसीड. कम ऑन एवरीवन. कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएसआई? हाँ, थैंक यू. फाइनली, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो भाई अगर ऐसा कोई सस्पेक्टेड लीक होता है तो उसके लिए भी यू हैव टू मेक पॉलिसी. इनफैक्ट यू ऑल्सो हैव टू फॉर्मुलेट इंटरनल कंट्रोल एंड रिव्यू दैट इंटरनल कंट्रोल. सो ऑडिट कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद दीज एंड दे ऑल्सो हैव टू रिव्यू दैट द इंटरनल कंट्रोल्स विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये रिव्यू वो कब करते हैं? हर क्वार्टर में करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, या इन अ फाइनेंशियल ईयर. So 43% students have given me the correct answer, although the votes have been reduced. भाई तुम लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हो पता नहीं. एटलीस्ट ट्राई, अटेम्प्ट करो. गलत होगा तो और याद रहता है. जो जो क्वेश्चन आपने आज गलत बताया, ट्रस्ट मी वो क्वेश्चन अगर सेम एग्जाम में आएगा ना, यू विल डू इट करेक्ट. ठीक है, हाँ, बट भाग जाओगे तब तो कुछ नहीं होगा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट. Fine. So the correct answer, my dear, for question number 8 is C, a financial year. Okay. Chalo. Question number 9. The all-in cost ceiling per annum for trade credits is. All-in cost ceiling आपको समझ में आता है? See, when we are talking about commercial borrowings, I am living in India. I want to import something from outside India. ठीक है? For that, I need foreign currency. Let's say
यहाँ पे हम ट्रेड क्रेडिट्स इन INR की बात कर रहे हैं बिकॉज आई हैव टू मेक सर्टन पेमेंट इन INR मे बी, बट लेट्स से अगर मुझे वहां से कुछ लेना है एंड आई नीड फॉरेन करेंसी, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आई हैव? I can take ECB. ECB क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स. और देर इज एन ऑप्शन ऑफ ट्रेड क्रेडिट ऑल्सो. ट्रेड क्रेडिट भाई जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हो वही क्या कर देता है, वो बोलता है बाय अभी कर लो, पे लेटर, बट दैट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट. इफ आई मेक इमीडिएट पेमेंट मे बी द प्राइस विल बी लेसर. इफ ही इज डेफरिंग द पेमेंट कि चलो 3 महीने बाद कर देना, ही इज प्रोवाइडिंग मी ट्रेड क्रेडिट बट दैट विल इन्वॉल्व अ कॉस्ट, राइट? नाउ दिस कैन बी इन FCY और इन INR, मतलब फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है. इट कुड बी एन इंडियन रुपी ऑल्सो इफ आई हैव टू अल्टीमेटली मेक द पेमेंट इन इंडियन रुपी, राइट? सवाल ये उठता है कि इसकी जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है वो स्पेसिफाइड है दैट इट कैन नॉट एक्सीड दिस. जैसे होता है ना, इंडिया में भी होता है कि आप लोन लेने जाओगे तो RBI ने बोला भैया इससे ज्यादा रेट नहीं चार्ज कर सकते हैं बैंक्स, तो वैसे ही ट्रेड क्रेडिट का इससे ज्यादा रेट नहीं हो सकता है. व्हाट इज दैट रेट? Benchmark rate plus 200 bps. I hope you understand that basis point, right? 200 bps means 2%, right? Benchmark rate plus 300 bps. Libor plus 200 bps. Benchmark rate plus 250 bps. So what is the correct answer? क्या लगता है? देखें जरा. अरे ये कंसेप्ट याद नहीं है कि इतने डिटेल्स याद नहीं है. देखो MCQs जो होते हैं ना उसमें ऐसे ही डिटेल्स पूछे जाते हैं, और जब डिटेल्स पूछे जाते हैं हाँ तो फिर क्या होता है, बच्चे हिल जाते हैं. तो यहां पे भी आंसर आप लोगों का कुछ कुछ गलत ही मुझे दिख रहा है. खैर, लिबोर अगर आपको लग रहा है तो वो नहीं है. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. लिबोर क्या होता है? लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. अर्लियर लिबोर के हिसाब से हम काम करते थे. नाउ दिस हैज बीन चेंज टू बेंचमार्क रेट. नाउ बेंचमार्क इट वाज, इट कुड बी एनी ARR. ARR मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट. ठीक है, तो RBI ने भाई कहा कि कोई भी इंटर बैंक रेट जो आपके उस करेंसी में एप्लीकेबल हो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो. सो नाउ इट इज बेंचमार्क रेट प्लस 250 BPS. सो दिस ऑल्सो हैज बीन रिड्यूस्ड. ये है हमारा करेक्ट आंसर. ओके, यस. चलो, फॉर द वंस हु हैव गिवन करेक्ट आंसर, कुडोज टू यू, है ना? और जिन्होंने नहीं किया है कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर्स प्लीज डोंट बी डीमोटिवेटेड बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. एग्जाम में करेक्ट आंसर नहीं आ रहा होता तो डीमोटिवेट होते, समझ आ रहा था. दिस इज द टाइम व्हेन यू आर एबल टू एसेस योर प्रिपरेशन कि नहीं आई एम अनएबल टू आंसर, आई नीड टू पुट मोर एफर्ट्स, राइट? सो आई प्रैक्टिस मोर MCQs. I'll see which particular chapter I'm lacking in. So this is the time when you're able to identify your weaknesses. तो बस यही काम करने बैठे हैं हम, डिसअपॉइंट होने नहीं बैठे हैं. ठीक है, हम एसेस करने बैठे हैं. Right? Assessment is all about that. Question number 10, everyone. Come on. In which case, minimum contribution should not be less than 20% of the post-issue capital, IPO, FPO, composite offer, fresh public offer. भाई ये दोनों तो वैसे भी हमने कुछ ऐसा सुना ही नहीं है ना? पढ़ा क्या है हमने? IPO पढ़ा है, FPO पढ़ा है, और उसमें भी हमने कंडीशंस फॉर IPO ही पढ़ी है. तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो करेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि यही है. अब करेक्ट आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया है, तो चीटिंग तो मैंने ही की है. आप लोगों को बोला चैट में मत लिखो और सबसे पहले करेक्ट आंसर दे दिया बिफोर यू कैन एक्चुअली पोल. बट देन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? दिस इज ऑल अबाउट प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, राइट? देयर इज अ कंडीशन व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड कि अगर आप IPO कर रहे हैं, मतलब इफ यू आर रेजिंग funds from public, then after the post issue your minimum contribution should be 20%. इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बोलूंगी, पूछूंगी rather, what is the lock-in period? Lock-in period for minimum for promoters contribution. Why I have striked out? Because you have read only about IPO, right? आपने SEBI ICDR में. अच्छा चलो पहले मुझे ये बताओ what is lock-in period for promoters contribution? जिसने भी पोल में आंसर दे दिया है ना वो मुझे बताएगा. Lock-in period for promoters contribution. Okay.
So I've got some answers 3 years, 3 years, 3 years, 3 years, 3 years, 3 years, 3 years. चलो फिर तो confusion का कोई scope ही नहीं है. I thought some of you might be updated with the recent SEBI. हाँ, तो जो SEBI का amendment आया था उसके हिसाब से it is 1.5 years, that is 18 months, right? So that is what the current limit is. However, the institute has not amended it and I don't see any plans of amending. या फिर अगर आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो there are 99% chances that you will get it as 3 years only and you have to mark that only. ठीक है, so यहाँ पे किसी ने वो आंसर दिया ही नहीं है तो यहाँ पे तो स्कोप ही नहीं है कंफ्यूजन का. 3 years, you remember, you please. हाँ, नहीं उल्टा है. चलो, never mind, it's 3 years for you. Okay, चलो. Question number 11. Moving to question number 11. The turnover threshold for individual company operating in India in combination is dash crores. So we are talking about Competition Act. And in Competition Act we have something called as combination, है ना. तो combination में हम 4 limits पढ़ते हैं basically, right? In India and the other and individual and group. तो अगर यहाँ पे मैं specific points को highlight करूँ, what is it? It is individual turnover in India. So इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे then you will be able to realize, right? So when we are talking about individual, तो उसमें क्या होता है, assets and turnover. Assets की लिमिट होती है हमारी 2000 करोड़ and turnover की लिमिट होती है हमारी 6000 करोड़. And when we are talking about group, ये बेसिकली आप ज़्यादा याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. एसेट्स की जो हमारी लिमिट होती है वो होती है 8000 करोड़ एंड टर्नओवर की जो लिमिट होती है वो होती है 24000 करोड़. Okay. चलो. So the correct answer, my dear, is option B, that is 6000 crores. Small company, maybe institute has not changed the limit of paid up capital. See, I'll tell you the real fact, beta, because you have asked this. Small company is the only limit which the students know. ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि ये लिमिट चेंज नहीं हुई है. देयर आर मेनी अदर लिमिट्स, मेनी अदर अमेंडमेंट्स विच हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. हम ये बोल सकते हैं यार ये तो अपडेटेड नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी विल रीड द अपडेटेड वन. द रियल प्रॉब्लम और द रियल स्ट्रगल कम्स जब एग्जाम में द ओल्ड क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, द स्टूडेंट मस्ट नो कि पुराना क्या है और नया क्या है. बिकॉज अगर पुराने के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड इन द ऑप्शंस दे आर ओनली प्रोवाइडिंग ओल्ड लिमिट्स, तो भाई बच्चे को पुराना भी पता होना चाहिए और तभी वो आंसर दे पाएगा, राइट? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट हियर वी आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट कि ये गलत है वो गलत है. अरे बहुत सारी चीजें सही है एंड विल लुक एट द पॉजिटिव एंगल एंड वी विल ट्राई टू एक्वायर नॉलेज एट द सेम टाइम वी विल बी स्मार्ट इनफ टू क्रैक आवर एग्जाम, है ना. चल, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑप्शन इज बी. 50% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है विद 200 वोट्स. चलो बढ़िया, बाकी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट आई होप देयर हाँ जो पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ता जाए. Moving to question number 12. Come on everyone. ABC Limited appoints a dealer for domestic fans and restricts him to take dealership of other product. Which type of agreement will it be considered? एक कंपनी है जिसने एक डीलर अपॉइंट किया है और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई तुम डीलरशिप किसी और प्रोडक्ट की नहीं लोगे. Which type of agreement will it be considered? Exclusive distribution agreement, predatory pricing, refusal to deal या resale price maintenance. अगर यहां पे एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट लिखा होता तो यू कुड हैव मार्क्ड दैट, बट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट ये नहीं है. प्रिडेटरी प्राइसिंग इज समथिंग सेलिंग बिलो द कॉस्ट. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की भाई इतने में ही आप रीसेल करोगे, है ना, वो हम कंडीशन लगा रहे हैं. व्हाट इज रिफ्यूजल टू डील? बेसिकली रिफ्यूजल टू डील ही यही होता है that you are putting some condition that यार इससे नहीं खरीदना है या इससे नहीं बेचना है या सिर्फ मुझसे खरीदना है सिर्फ मुझसे बेचना है. that is also a part of just like exclusive supply agreement. refusal to deal भी उसी चीज का हिस्सा होता है.
So the correct answer over here will be refusal to deal. That is option C. ऑप्शन सी, ये इंस्टीट्यूट का ही है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट ये पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम्पल है ये इंस्टीट्यूट की ही बुक का है, ठीक है। चलो 33% स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तो आधे सवाल भी नहीं हुए हैं, क्या आपने 50% अचीव किया है अभी तक? चलो क्वेश्चन नंबर 13 की पोल इज लाइव। Who shall monitor the utilization of proceeds in case of an NPO if the issue size is more than 100 crores? Again, if you all remember, तो भाई जब IPO होता है, IPO से आप रेज कितना कर रहे हो? मोर देन 100 CR। तो किसी को बोला जाता है, मतलब देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट समबडी विल मॉनिटर कि ये जो प्रोसीड्स हैं ये यूटिलाइज किस ढंग से हो रहे हैं, ठीक है। अर्लियर अगेन इट वाज कि 95% तक जब प्रोसीड्स हमारी यूटिलाइज हो जाएंगे तब तक ही मॉनिटरिंग करेंगे एंड दैट ओनली हैज टू बी रिपोर्टेड। बट नाउ अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस यू हैव टू मॉनिटर till 100% of utilization. But then the point is, who is going to monitor? SEBI, independent director, bank, or audit committee? Well, I would have written the option like this also, banks oblique PFI, तो शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा easy होता, but मैं तो यहाँ difficulty level increase करने बैठी हूँ, so why would I do that? हाय, क्या बात है। सिर्फ यही पता चल रहा है कि पढ़ा नहीं है, यहाँ पे गेस वर्क चल रहा है। Because when we are talking about IPO, the regulatory authority is of course SEBI, so SEBI लिख दो यहाँ पे। 99% चांसेस है कि SEBI will be the correct answer, है ना। बट ऐसा नहीं होता ना बच्चे, थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं then we are able to realize and understand and remember कि बैंक्स और PFI यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन भाई, because only 14% students have given me the correct answer. Okay, so yes, banks or PFI, they also have to report on quarterly basis. Moving to the next question. See, the initial first 20 questions are difficult, the next 20 questions are easy. So first 20 questions might pull you down, but the next 20 questions will boost your confidence. Okay, so that's how I have designed it. As a teacher, I know some certain things. Okay? तो चलो, सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, द कमीशन ऑल्सो हैज द पावर टू इम्पोज अ फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू what percentage of the total turnover or the assets of the combination, whichever is higher, for failure to give notice to the commission of the combination. See, whenever you are entering into a combination, आपको क्या करना होता है? You have to notice, give notice in the specified form to CCI, है ना। और CCI क्या करते हैं, मैं इन दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा कंबाइन कर दे रही हूँ, राइट। सो यू गिव नोटिस in specified form. The poll is live. I hope everyone is giving the answer. Keep on writing your answers. Notice in specified form to CCI. And what they do is they can either approve. तो वो पास कर देते हैं orders of approval or whatever rejection they have to do. If they don't pass any order, then we have to wait for certain days. If those days expire, then it is deemed that they have approved, है ना। तो ये जो कितने डेज है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर विच द पोल विल बी क्रिएटेड, वेट फॉर इट, राइट। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू गिव नोटिस, एंड इफ यू फेल टू गिव नोटिस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, राइट, to the commission, then they can impose a fine. That fine is what? Let me see. 137 votes so far. Majority तो है, 39% हैं बच्चे जो बोल रहे हैं। The correct answer, my dear, is option B, 1%. Option B, 1%.
Okay, so we'll end the poll because I've already explained you the next question also. So we'll end the poll. यहीं पे कर दे रहे हैं, थोड़े कम पोल आए थे अभी, मैं थोड़ा जल्दी एंड कर रही हूँ, बट इट्स ओके. आई होप यू हैव रिटन द करेक्ट आंसर समवेयर. अरे रे रे, don't prompt the answers in the chat. No, 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 no. I'm glad you know the answer, but not over here. Right? The poll is live. Please participate in the poll. Question number 15. If the commission does not on expiry of dash days from the date of notice given to commission pass an order or issue a direction, the combination shall be deemed to have been approved by the commission. तो ये मान लेंगे कि सीसीआई ने यार अप्रूव कर दिया. कितने दिन हम इंतजार करते हैं? 210 डेज, 180 डेज, 260 डेज, 300 डेज. कमाल की बात ये है कि कोई एक बच्चा अभी क्या लिखा, अरे यार कहाँ गया वो? ओ, आई एम ग्लैड कि चलो डिलीट कर दिया, बट एक आंसर आया मेरे पास 270 डेज. यार वो तो ऑप्शन में ही नहीं है. चलो नेवर माइंड, आई कैन नॉट सी द पोल अगेन. जस्ट अ सेकेंड, देखा जाए. ओके, 171 वोट सो फार. थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन है बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बट द करेक्ट आंसर माय डियर इज 210 डेज. सो नॉट एवरीवेयर द लिमिट कैन बी 180 डेज. यहाँ पे आंसर क्या है? 210 डेज. बट आई एम ग्लैड टू सी कि 180 स्टूडेंट्स ने वोट किया है सो फार एंड 43% स्टूडेंट्स ने लगभग इसका आंसर सही भी दिया है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. चलो, okay, moving to question number 60. For investment in market securities, FIIs are to be registered with. At the first place, can you tell me the full form of FII? Can anyone tell me the full form of FII? They are to be registered with either MCA, RBI, SEBI, or none of the above. हाँ, this question seems to be an easy one for you, है ना? I'll explain you that. 72% students by far, foreign institutional investors. That is correct. Investment नहीं, हाँ, foreign institutional investors. देखो, कोई भी एंटिटी है जो इंडिया के बाहर की है एंड इट इज प्रपोजिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. जस्ट लाइक वी हैव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओवर हियर, एज आई हैव एक्सप्लेन टू यू. QIBs वगैरह भी होते हैं हमारे पास, राइट? वी हैव रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस, वी हैव हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, राइट? वी ऑल्सो हैव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ये सब क्या करते हैं भाई? इन्वेस्ट करते हैं. लाइकवाइज वी हैव इन्वेस्टर्स आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. दे मे बी इन द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल और दे मे बी इन द कैटेगरी ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट? तो वो दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद सेबी. ठीक है, हाँ. तो ये आंसर आपके लिए इजी था. 60% students have given me the correct answer, which is SEBI. FIIs have to register themselves with SEBI. Okay? हाँ. In fact, हमारे पास SEBI के FII regulations भी हैं specifically, and these regulations date back to 1995. Okay? चलो, we end the poll. 59% students have given me the correct answer. Chalo. For first 14 questions. Okay. So for the initial questions, I'll be very honest, the initial questions, as you are clapping that ma'am for first 14 questions, they were for the ones who were aiming for 70 plus or 80 plus in law, right? So if you have the target, if you want to get a rank, then you have to have a solid preparation like that. So you should be able to answer all the MCQs, not just the ones which are at the end of the chapter. Chapter के end में 10 MCQ हैं, वो हमने कर लिया, अरे यार हमें तो सब आता है, वो वाला चीज नहीं होना चाहिए. ठीक है? Okay, question number 17. The poll is live, everyone. Come on. DPIIT comes under. तो पहले पोल देना है, उसके बाद DPIIT का फुल फॉर्म बताना है कि मुझे क्या है.
DPIIT comes under industry and commerce, finance, corporate affairs or none of the above. चलो आंसर तो तुम लोग सही दे रहे हो यार, तो मेरा मन तो थोड़ा खुश हो गया. 100 वोट्स आए, 76% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है. तो वो जो एकदम तुरंत आंसर देते हैं ना, आई थिंक वो बच्चे सही आंसर देते हैं. बाद में ये जो पोल है ना पूरा खराब कर देते हैं. हाँ, इंस्टीट्यूट आपको नंबर देने के लिए बैठा हुआ है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. आप लाने वाले तो बनो. किसी को नहीं पता फुल फॉर्म? कहाँ हो तुम लोग? डिपार्टमेंट ऑफ, अच्छा आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड. आई बी डिपार्टमेंट ऑफ promotion, that's correct, promotion of industry and internal trade. that हाँ, I think पुलकित शर्मा ने मुझे एकदम सही आंसर दिया है. वेल डन. इंटरनल ट्रेड एंड आयुषी ऑल्सो. अब तो सबके आ रहे हैं. एकलव्य, वेरी गुड. ठीक है, ये है क्या बच्चों? It is a department of central government which comes under the Ministry of Commerce and Industry. Although industry and commerce लिखा है, it's the same thing, है ना? So not under the Ministry of Finance, not under the Ministry of Corporate Affairs, but under the Ministry of Commerce and Industry. There is yet another department which comes under the same ministry, and that is Department of Commerce. ठीक है, चलो बढ़िया. Okay. So 71% students ने सही जवाब दिया है. I'm happy to see that. Moving to the next question. Question number 18. Question number 18. Sale of shares. Very simple question. बहुत इससे easy question नहीं मिल सकता है. ठीक है, at the final levels. Sale of shares from a resident to a non-resident is current account transaction, capital account transaction, any of the above, none of the above. हाय, क्या क्वेश्चन बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है. देखो, मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन. चलो बताओ जरा फटाफट से. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है? इट ऑल्टर्स दी. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? विच ऑल्टर्स, किसको ऑल्टर करता है? एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज. किसकी? ऑफ PRI आउटसाइड इंडिया और PROI इन इंडिया. तो यहां पे क्या हो रहा है भाई? एक नॉन रेसिडेंट है, मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसको शेयर्स मिल रहे हैं फ्रॉम अ रेसिडेंट, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी एसेट्स जो हो रहे हैं वो ऑल्टर हो रहे हैं. सो इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. वेरी सिंपल वन. Although I feel they should have given more details, तो इससे हम लूप होल्स निकाल सकते हैं, बट इट्स ओके. ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो सही आंसर मिल जाएगा, है ना? चलो, तुम लोग यार मेरे ही मजे ले लेते हो. चलो क्वेश्चन नंबर 19. नहीं, क्वेश्चन नंबर 19. Eligible borrower can raise up to $million through ECB in automatic route. ये तो लिमिट है. जो अगर याद है तो भाई नंबर मिलेंगे, और अगर नहीं याद है तो फिर आप क्या करोगे? गेस करोगे, फिर जस्टिफिकेशन भी ऐसा ही लिख के आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. बट ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर दिस लिमिट. दिस लिमिट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, है ना? एलिजिबल बोरोअर होता कौन है? एलिजिबल बोरोअर, somebody who is eligible or entitled to receive FDI is also eligible borrower under ECB. क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ECB की बात कर रहे हैं. ECB मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, है ना? तो एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से पैसे ले रहे हैं, ठीक है? कमर्शियल बोरोइंग्स बिजनेस के लिए ले रहे हैं, है ना? यहां से भी हम जाके पैसे ले सकते हैं, बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, पर हमको बाहर से लेना है. क्यों बाहर से लेना है? हो सकता है हमको सस्ते रेट पे मिल रहा हो तो हम ले रहे हो, ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स अगर हमें लेनी है तो हमें मिल सकती है इफ आई एम एन एलिजिबल बोरोअर.
Who is an eligible borrower? Somebody who is eligible to receive FDI is an eligible borrower, right? But under automatic route, that means without any government approval, if you want to obtain ECB, there is a limit up to 500 million USD, 750 million USD, 1000 million USD या 1250 million USD. बताओ जरा, देखूं क्या हालचाल है. Only 160 votes. क्यों भाई, कहाँ हो तुम? 45% स्टूडेंट्स ने मुझे सही आंसर दिया है, which is 750 million USD. Okay? So question number 19, the correct answer is option B. हाँ, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन बहुत इजी है, बट अगर आपने पढ़ा है, अगर ऐसे ही सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा है तो फिर आंसर नहीं दे पाओगे. अगर कंसेप्ट पता है तो आंसर दे पाओगे. A compliance officer, we read about the compliance officer, right? A compliance officer monitors adherence to the rules for preservation of UPSI, that is unpublished price sensitive information, है ना, वो ensure करते हैं, वो बहुत सारी चीजें और भी करते हैं. Who can be a compliance officer? Only a company secretary can be the compliance officer, or CS, CA, CMA can be the compliance officer, or any senior officer who is financially literate or as appointed by SEBI. If you have read the definition of compliance officer, only then you will be able to answer this question. नहीं तो आप सिर्फ guess करोगे, और हो सकता है the students who are giving me the correct answer वो भी guess से ही correct answer पे आए हों. But you need to attempt. Come on everyone. I want कि सब के सब पार्ट लो. मैंने पहले भी बताया, अगर गलत आंसर करोगे ना तो एग्जाम में सही करोगे. वाह, मतलब मैं आपको, आई विश आई कुड हैव शोन यू द स्क्रीनशॉट. मतलब 25, 24, 25 ऐसे ही हैं, एकदम बराबर वोट्स दिए आपने, किसी को भी कम ज्यादा प्यार नहीं दिया है ना. क्या बात है. अब इसको मैं क्या ही समझू. प्रोहिबिशन से भी रेगुलेशंस, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग में आप देखते हो, कंप्लायंस ऑफिसर होता है, वो रिपोर्ट भी करता है. ही वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, एंड ही हैज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मतलब कि ही शुड बी समवन, इट इज नॉट स्पेसिफिकली कि वो CS ही होना चाहिए या CA या CMA ही होना चाहिए. इट इज समवन, इट कुड बी एनी सीनियर ऑफिसर हु इज फाइनेंशियली लिटरेट, ही वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड ही शुड बी समवन हु इज कैपेबल, कि भाई उसको सारे लीगल कंप्लायंसेस वगैरह की जानकारी हो, एंड ही इज एबल टू अप्रिशिएट दैट, राइट. तो वो हो सकता है हमारा कंप्लायंस ऑफिसर. I know you can see the poll. I was trying to say the moment I saw it, right? तो ऐसे एकदम यूनिफॉर्मिटी थी. चलो, ग्रेट. बट हाँ, इतना तो दिख ही रहा होगा कि भाई एकदम बराबर बांट के चारों ऑप्शंस को आपने प्यार दिया है. इतना प्यार मत दे के आना, एग्जाम में काम नहीं आएगा. चलो, कैश रिजर्व रेशियो शुड बी, क्वेश्चन नंबर 21. करेक्ट. चलो, कैश रिजर्व रेशियो शुड बी डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज. CRR, देखो CRR हमारा क्वेश्चन होता है. SLR पे भी हमारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. CRR इज व्हाट? द रिजर्व्स दैट यू नीड टू कीप विद RBI, है ना, बैंक्स को रखना पड़ता है ना कि इतना पैसा सेट असाइड करके रखो. SLR क्या होता है? वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में पैसा जो बैंक्स को रखना पड़ता है. सो देयर आर वेरियस थिंग्स विच RBI डायरेक्ट्स एंड द बैंकिंग कंपनीज हैव टू मेंटेन दैट, राइट. आइडियली द करेंट रेट्स, अगर हम बात करें CRR की और SLR की, कैन समबडी टेल मी द करेंट रेट्स? व्हाट आर द करेंट रेट्स ऑफ CRR एंड SLR? थोड़े मिक्स्ड आपके यहाँ पे भी आ रहे हैं. कोई बोल रहा है 1% तो बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं, बट 2%, 3%, 4%, अगेन यूर ऑल कंफ्यूज, है ना, सारा मिक्सचर हो रहा है, पूरा खिचड़ी पकड़ी है.
Come on, everyone. Can somebody tell me the current rates of CRR and SLR? Well, you should know that. Right, correct. Thank you, Ravina. Thank you, StudyBot. 4.5 and 18. Okay. However, CRR का ये option में भी नहीं है, so we will of course mark the old limit, and that is 4%. Okay. So the correct answer to question number 21 is 4%. Option D, that is what we are going to mark as the correct answer. ठीक है, चलो अब जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली आएंगे, एक आध दो चार क्वेश्चंस को छोड़ दो, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे इफ यू हैव अटेम्प्टेड एवरीथिंग वेल. मतलब एमटीपी का क्वेश्चन है, आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, राइट, स्टडी मैट के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं. इफ आई से दैट यू गेट 10 एमसीक्यूज, मोस्ट प्रोबेबली 7 MCQs will be the repeated ones only. ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है. अगर आप बहुत अनलकी निकले तो आपके लिए भाई मुश्किल हो सकती है, but that's how it is. So for MCQs, what you can do is practice all study mat MCQs, practice all MTP MCQs, practice all past year MCQs, and you will be able to score 60-70% in MCQs. ठीक है, चलो तो अब गलतियां थोड़ी कम करना प्लीज, मेरी और अपनी दोनों की इज्जत रखना, है ना. क्वेश्चन नंबर 22. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, आरबीआई, एमसीए और नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 22 माय डियर, द पोल इज लाइव. बताओ जरा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है मैंडेटरी. वी हैव रेड सरफेसी एक्ट, और उसमें सेक्शन नंबर 3 में द फर्स्ट prima facie, the first section that we read, उसमें हम पढ़ते हैं that you have to mandatorily register yourself. ARC companies, ARC have to register themselves with an authority. In fact, the same authority also has the power to cancel their certificate of registration. कौन सी वो authority होती है? चलो, at least the majority students are giving me the correct answer now. 52% so far have given me the correct answer, 171 votes so far, and now I'm going to mark the correct answer, which is option B, RBI. ठीक है, RBI क्या है, वो correct answer है. चलो, क्वेश्चन नंबर 23. बोलोगे मैम की स्पीड अचानक से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या हो गए, थोड़े इजी आ गए, है ना. चलो, Judicial authority under SARFAESI is. Judicial authority under SARFAESI is SEBI, RBI, DRT और MCA. DRT क्या है? Debt Recovery Tribunal, है ना, which we also read in IBC. हम IBC में भी DRT के बारे में पढ़ते हैं. IBC में हमारे पास दो अथॉरिटीज चलती है, NCLT हाँ और DRT. DRT we also talk when we talk about personal insolvency, है ना. So what is the correct answer? 105 votes so far. I'll wait slightly more कि आपका थोड़ा और पार्टिसिपेशन आ जाए. 45%, 46% students लगभग they are giving me the correct answer. Yes, my dear. The correct answer is DRT only. Judicial authorities, in fact, दो आती हैं. One is DRT and the other one is DRAT. So if you are aggrieved by the decision of DRT, where can you appeal? DRAT, that is Debt Recovery Appellate Tribunal. है ना? चलो, बहुत बढ़िया. 178 votes, 180 votes. 49% students have given the correct answer. Question number 25. Sorry. Question number 24. नजर हटी, दुर्घटना घटी, है ना. मैं ऊपर करती जा रही हूं. और क्वेश्चन नंबर 24. Amalgamation of banking companies require dash percentage of voting of shareholders. Right? See, what happens is when banking companies want to amalgamate, there are two things prima facie. One is the approval from shareholders and second is RBI, right? So, shareholders, what is the percentage of voting that you need approval of? Section number 44A. 3/4, 1/2, 2/3, or it is not 1/4, it is 1/4, है ना.
वी हैव ऑल्सो रेड कि अगर हमारे अनविलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एग्जिट भी ले सकते हैं. So at the rate whatever is decided by RBI, at whatever value is decided by RBI, they can also take an exit, right? But otherwise it has to be approved by usually we feel it should be 3/4, it should be 3/4, but it is not so. The correct answer is option C, 2/3. अगर ये आंसर आपको नहीं आया है प्लीज मार्क करके रखो कि क्वेश्चन नंबर 24 आई हैव टू रिव्यू, आई हैव टू कीप दिस फिक्स्ड इन माई माइंड दैट इट इज 2/3. आई नीड 2/3 अप्रूवल. Okay, so 2/3 of majority you need. Fine. Okay, moving to question number 25. Come on, everyone. Question number 25. अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फॉर समबडी हु हैज रेड इट. इफ यू हैवंट रेड इट तो भाई आपको फिर कुछ भी सारा एलियन जैसा ही लगेगा, बट अगर पढ़ा है तो बहुत ही सिंप्लीफाइड सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ऑफकोर्स आपके स्टडी मटेरियल का नहीं है, बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Which of the following is not a BI tool? Business intelligence tools. You understand that, right? The first one, OLAP. The second one, ad hoc analysis. The third one, locational intelligence. And the last one, spoofing. Finally, a sigh of relief कि भाई easy questions में आप सही भी कर रहे हो. Because always your exam paper is going to be a mix of some easy questions and of course some tricky questions also. ठीक है, unless you're very lucky. तो एटलीस्ट आप इजी क्वेश्चंस तो कर पाओगे, है ना. और अभी तो बाकी है यार, एग्जाम में तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो हमें तगड़ी तैयारी करनी है ना. सो वी आर टुगेदर इन दिस, डोंट वरी. बैंकिंग कंपनी कहां से आ गई? 54% students have given me the correct answer, which is option D, spoofing. Spoofing, my dear, is a cyber crime. है ना. यूजुअली वी टॉक अबाउट स्पूफिंग, तो हम बात करते हैं स्पूफ्ड ईमेल्स के. जब हमें दिखता है कि यार यहाँ से ईमेल आया है बट एक्चुअली उसका ओरिजिनेशन कहीं और से होता है ना. हाँ, सो इट शोज अ डिफरेंट ओरिजिन दैन व्हाट इज एक्चुअली इज. सो दैट वी कॉल अ स्पूफ्ड email. So that we read in cyber crimes. This is not a BI tool. Okay. Question number 26. Question number 26. Again, a damn easy question. Insurance policy made by an insurer shall not be questioned after how many years? This is how they have asked. Basically, I should say life insurance policy, but it doesn't matter. Insurance policy made by an insurer shall not be questioned after 1 year, after 2 years, after 3 years, after 4 years. इसको काट देती हूँ, है ना. अच्छा नहीं लग रहा मुझे. जब यहाँ पे years लिखा है तो फिर क्यों लिखे, है ना. Okay. Question number 26. Well done. वोट्स तो बड़े कम मिल रहे हैं, पता नहीं आप लोग धीरे धीरे कर रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूं. चलो 140 वोट्स सो फार एंड 59% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, विच इज ऑप्शन सी, 3 years. ठीक है, तो 3 साल बाद क्या होता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड. अगर फ्रॉड व्रॉड भी किया था इट डजंट मैटर भाई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आपको क्लेम मिलेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. IRDA shall within dash, मतलब यहां पे पीरियड लिखना है. After the close of each financial year, submit to central government a report giving a true and full account of its activities. भाई आपने पूरे साल में क्या किया, including the activities which you did for the promotion and development of insurance business, because that's what you are meant for. भाई IRDA क्या है, रेगुलेट कर रही है इंश्योरेंस बिजनेस को, प्रमोट कर रही है इंश्योरेंस बिजनेस को ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो ये रिपोर्ट हमें कितने, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम यू हैव टू सबमिट इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, विद इन 3 months, विद इन 1 month, 9 months, 6 months, what is the time limit? If you remember it, you'll be able to do it. If you don't remember, you'll not be able to do it. This is something which is pure learning, है ना. यहाँ पे कंसेप्ट की बात नहीं है, and that's how maximum MCQs are. ठीक है, एमसीक्यू अगर आपसे 10 पूछे गए हैं ना तो उसमें से 6 एमसीक्यूज ऐसे ही होंगे विच यू हैव टू लर्न, 4 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जहां पे कंसेप्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है.
चलो, आई एम ग्लैड टू हियर कि बड़ा मजा आ रहा है ना. चलो 123 वोट सो फार, और पर पूरा आपने मिक्स कर दिया है. स्टिल 26% स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन ए 9 months. ऑप्शन ए 9 months. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. अगेन इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है. द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट एन इंश्योर्ड, मतलब मैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई, इंश्योर, हाँ, और मैं इंश्योर्ड, डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योरर्स. मतलब क्या किया है मैंने, एक तरीके से आई हैव टेकन पॉलिसी फ्रॉम दिस इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, and I have taken another policy from this insurance company also. So will I get profit? Will I make profit? कि मैंने multiple insurers से वो लिया है. What is this actually principle called? I will not be able to make profit. But what is it? Is it principle of subrogation? Is it principle of co-insurance? Is it principle of indemnity? Is it principle of contribution? क्या है ये? Subrogation and indemnity, they are actually closely related and similar. Co-insurance is all about splitting the risk. It could be splitting the risk between insurance company and the insured, or between two insurance companies. Contribution is something which is the correct answer. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही क्या है, कंट्रीब्यूशन. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29. वी आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल क्वेश्चंस भाई, ऑलमोस्ट. हाँ, और लास्ट के तो क्वेश्चंस मैंने वैसे भी आपको बोला हुआ है कि एकदम मक्खन वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको फटाफट से करने वाले हैं, क्योंकि मुझे आपको जल्दी, मैं आपको फ्री करूंगी तभी तो आप कल पूरा कंपनी लॉ पढ़ोगे एकदम बढ़िया से. एंड अगेन वी आर गोइंग टू मीट फॉर द नेक्स्ट लाइव सेशन, और कंपनी लॉ के सेशंस पे आई थिंक यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस. चलो, question number 29. In case of fire and motor accident insurance, the insurable interest has to be present both at the time of taking the policy and at the time of accident, or at the time of taking the policy, or at the time of happening of the event, or none of the above. I hope you understand insurable interest, right? Because unless you have insurable interest, you are not somebody who can pay insurance premium to the company. आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि किसी और की पॉलिसी है, आपने उसका प्रीमियम दे दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो वो बाद में क्लेम नहीं देंगे. ठीक है, तो जिसकी पॉलिसी होती है, मतलब जिसका इंटरेस्ट होता है, वो ही क्या कर सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है, उसी को क्लेम मिलता है. ठीक है, बट समटाइम्स यू हैव टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. लाइक इफ आई टॉक अबाउट मरीन इंश्योरेंस, भाई अगर मोटर एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, आज मेरे पास गाड़ी है, मैं गई इंश्योरेंस कंपनी के पास और मैंने उनको बोला कि इसका मुझे इंश्योरेंस कराना है. सो व्हेन आई एम टेकिंग इंश्योरेंस, आई हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट मोटर कार और मोटर व्हीकल, वॉट एवर इट इज. सपोजली आई सेल दैट मोटर व्हीकल और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम देगी? नहीं. क्यों? वो तो मेरी रही ही नहीं ना. So if I'm talking about motor accident insurance, the insurable interest has to be present at the time of taking policy and also at the time of accident. But if I'm talking about marine insurance, तो marine insurance क्या होता है, मेरा सामान आने वाला उसका इंश्योरेंस करा, तो भाई हमने तो इंश्योरेंस ले लिया, अभी तो हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था. ठीक है. Okay, so the correct answer, my dear, is option A. 59% students have given me the correct answer. Great. चलो बढ़िया. Question number 30. A branch of a company. बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? Listen to it very carefully. A branch of a company incorporated in US. A branch of a company which is incorporated in US is opened in Ranchi. So there is a company which is incorporated in US and it has opened a branch in Ranchi. Ranchi, I hope you know, it is a place in India only, right? It is controlled from head office in US. मतलब ये जो branch है, that is being controlled by that head office.
that branch is going to be a PRI or a PROI or a person of Indian origin or none of the above. सोचो, सोच समझ के प्लीज आंसर देना, बहुत हड़बड़ा के जल्दी में आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 30. बस मैंने इसीलिए बोला था हड़बड़ा के आंसर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हड़बड़ा के आंसर्स आपके थोड़े से गलत ही आते हैं. When I'm talking about PRI की definition, ठीक है, who is going to be called as person resident in India? I have someone who is an individual. तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि आप पिछले साल कितना रहे हो, if you have come for employment, etc. There are a lot of things, right? But other than individual हम क्या देखते हैं? We have a body corporate. बॉडी कॉर्पोरेट इज वन सच थिंग ना, जिसको हर बार मैं शॉर्ट में लिखना चाहती हूँ बट आई एम अनएबल टू राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजंस, है ना. बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज गोइंग टू बी अ PRI. मतलब देयर इज अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वो क्या हो जाएगी? PRI हो जाएगी. देन वी हैव अ ब्रांच in India. A branch which is in India is going to be a PRI, whether it is owned or controlled by PROI or PRI. मतलब in the given case हमारे पास एक रांची में ब्रांच है, वो ब्रांच कहाँ है? इंडिया में है. उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? US कर रहा है, मतलब PROI कर रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता है. उसको ओन कौन कर रहा है? फर्क ही नहीं पड़ता हमें. ब्रांच कहाँ है? इंडिया में है, तो वो क्या होगी? PRI होगी. ठीक है. देन मे बी देयर इज अ ब्रांच विच इज आउटसाइड इंडिया बट इट इज कंट्रोल्ड बाय PRI और इट इज ओन्ड बाय PRI, दैट इज ऑल्सो अ PRI ओनली. मतलब अगर यहां इंडियन कंपनी है, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने अपनी जाके एक फॉरेन में ब्रांच खोल दी, वो फॉरेन ब्रांच को हम PRI ही बोलेंगे. समझ में आई बात? So this is basic concept, beta. If you are reading FEMA and you still don't know what is PRI and PROI, if you don't know about current account transactions, if you don't know about capital account transactions, then you need to rethink. है ना? बहुत basic है. ठीक है? चलो. 41% students have given me the correct answer, which is option A, PRI. देखो इतनी हंसी आई क्यों है पता नहीं. I think I know why. Anyways, question number 31. While calculating the value of assets for ascertaining the classification, or sometimes the institute इसी टाइप के आपसे questions पूछ लेती है and you are unable to get the reference. मैम कौन सा classification? तो आपको थोड़ा सा और अपने आप को दिमाग को stress देना पड़ेगा. While calculating, here we are talking about MSME classification only. So while calculating the value of assets, for ascertaining the classification, the value of the following is excluded: land, furnitures and fittings, none of the above, both A and B. Easy questions for the ones who know it. For the ones who do not know it, भाई तो कुछ नहीं कर सकते हम. क्या बात है, हाय. 72% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है. 31 and 32 दोनों MSME के क्लासिफिकेशंस के लिए है. वी नो दैट वी हैव अ कंपोजिट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ MSME where we need to check two things. One is investment in plant and machinery and the second is turnover. So when we are talking about investment in plant and machinery, it includes the tangible assets but excludes furniture and land. So the correct answer for question number 31 is option D, both A and B. बोथ A and B. प्लीज बच्चों मत लिखो यार, चैट में आंसर मत लिखो ना. वी आर नॉट हियर टू डिमीन एनीवन ना, हम तो अपलिफ्ट करते हैं ना खुद को भी और दूसरों को भी, है ना. सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एवरीवन एन अ फेयर अपॉर्चुनिटी कि वो अपने दिमाग पे स्ट्रेस देके पोल में आंसर कर पाए. अगर उनको ऐसे आंसर दिख जाता है ना तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली थिंक, है ना. फिर वो क्लिक कर जाता है अच्छा यही है. सो लेट अस बी ऑनेस्ट, राइट. चलो
Thank you. Okay, so we end the poll for question number 31. Most of you have given me the correct answer. We move to question number 32. चलो बढ़िया. Question number 32. While calculating the value of turnover, अब क्या है? Similar चीज है. While calculating the value of turnover for ascertaining the classification, the value of the following is excluded. तो जब हम turnover की बात करते हैं तो turnover में हम क्या include करते हैं, मतलब क्या exclude करते हैं? Any sales, domestic sales, exports or none of the above. This is the question जो एग्जाम में कभी नहीं आना चाहिए, एकदम फालतू क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ आना नहीं चाहिए. और यही क्वेश्चन का आंसर देखो, वाह क्या बात है, 81% स्टूडेंट्स ने मेरे को करेक्ट आंसर दिया है. ऑल्दो अभी वोट्स बड़े कम से आए हैं, ऑलमोस्ट 100 वोट्स ओनली, बट ठीक है कोई बात नहीं. फिर भी चलो, तो मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी. आई हैव मार्क द करेक्ट आंसर एज सी एंड आई विल एंड द पोल हियर इटसेल्फ, है ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 33. Now you all have to be quick and भाई जो मेरे लिए पोल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे वो भी थोड़ा क्विक रहे तो अच्छा होगा. सर्टिफाइंग अथॉरिटी गेट लाइसेंस टू ऑपरेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, सेबी, controller of certifying authority or none of the above. Who is a certifying authority? We talk about IT Act, है ना, 2000. हम उसकी अगर बात करें तो हमारे पास जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होते हैं उनके पास पावर होती है टू इशू डीएससी, है ना. सबसे मेन पावर तो वही होती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसकी हम बात करते हैं. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करता है, हमें डीएससी देता है. बट क्या कोई भी डीएससी बना के डीएससी बेचेगा, ऐसा चल सकता है क्या? नहीं. दे नीड टू गेट लाइसेंस टू डू दैट. वो लाइसेंस इनको कौन देता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी लाइसेंस इशू करते हैं, सेबी करते हैं, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? सी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिनको हम प्यार से सीसीए भी बुलाते हैं, दैट इज बीइंग एक्चुअली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये क्या करते हैं? लाइसेंस भी देते हैं, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को रेगुलेट भी करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, सब काम करते हैं. So what is the correct answer for this particular question is option number C, and I'm glad to see that 70% students have given me the correct answer. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 34, 35 भाई आपके स्टडी मैट के ही क्वेश्चंस हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट? वेरी 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 सिंपल, देख के पढ़ के ही समझ में आ जाएगा यार. मैम आईटी एक्ट की बात कर रहे हैं. टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सो इफ यू टैम्पर विद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, इज इट नॉट एन ऑफेंस? ऑफ कोर्स इट इज. हैकिंग, ये तो सबसे बड़ा ऑफेंस है ना, एंड सबसे पॉपुलर वन. कुछ नहीं समझ में तो हैक हो गया है ना, दैट्स व्हाट वी से. मिसरिप्रेजेंटेशन टू कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. So if you are misrepresenting, that is also under IT Act an offense. And making a faulty contract. Making a faulty contract. Faulty contract ही क्या है यार, है ना. So यहाँ पे आप बेसिक अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, then also you'll be able to give the correct answer. And my students have actually done that, है ना यार. बस 6 क्वेश्चंस बचे हैं. स्पिरिट कम नहीं होना चाहिए, जोश बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए. 119 votes so far. Okay, 120 votes so far. Great. And the correct answer is option D. 150 votes लगभग आए हैं and 72% students have given me the correct answer. Well done. Moving to question number 35. This is slightly tricky. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011. कौन से वाले रूल्स? रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन. उसके रूल्स हैं. ओनली अप्लाई टू बॉडी कॉर्पोरेट एंड पर्सन्स लोकेटेड इन इंडिया. Only apply to body corporate and persons located outside India. Applies to individuals or all of the above. किस पे एप्लीकेबल होते हैं ये? किस पे एप्लीकेबल होते हैं ये? I'm glad to see that your spirit is high. चलो, 74 votes already.
अब ऑल ऑफ दी अबव आ जाता है ना, तो बच्चों को यूजुअली लगता है कि मैम सब पे ही एप्लीकेबल होते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस दोगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड ऑल, है ना. सेंसिटिव पर्सनल डेटा कभी कभी हम इंडिविजुअल्स को भी दे देते हैं, राइट. बट मोस्टली यहाँ पे लायबल किसको ठहराया जा रहा है या किसके लिए ये एक्चुअली रूल्स बने हैं. देर आर मेनी कंपनीज हु टेक सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई आप ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ. उस मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए दीज रूल्स हैव कम, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी हैव very well clarified this. They released a press note and they have very well clarified this, that it only applies to body, corporate and persons located in India. So if you do not know this, please mark this in your head, and this is the correct answer. So question number 35, my dear, the correct answer is option A. ठीक है, चलो. Moving to the next question. Question number 36. क्या बात है. The poll is live. Which of the following is not a cyber offense to public? So when we are talking not a cyber offense to public, we are talking about cyber offense to government में basically हम बोल सकते हैं. ठीक है. Terrorism, it affects general public directly. Warfare, it again affects general public. Piracy, या फिर मैं बोल सकती हूँ जैसे गवर्नमेंट को तो रादर इफेक्ट करता ही है. तो यहां पे जब पब्लिक लिखा है ना, तो इन योर माइंड व्हाट यू कैन कीप इज गवर्नमेंट. तो हमने बहुत सारी पढ़ी है ना साइबर क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है. गवर्नमेंट इज व्हाट? इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल पब्लिक, राइट. सो इट इज अ साइबर ऑफेंस और साइबर क्राइम अगेंस्ट जनरल पब्लिक, अगेंस्ट गवर्नमेंट, राइट. सो टेररिज्म, पायरेसी, डेटा ऑल्टरेशन क्या है भाई? व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? आइडियली आई विल से दैट नन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसमें से कोई भी 100% सही आंसर तो नहीं है, बिकॉज दे आर all cyber offenses against government or public, right. However, if you go in depth, तो ये जो है ना, नहीं, बट यार इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है तो आंसर तो मार्क तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे, फंस जाओगे ऐसे. तो सुनो, जो डेटा ऑल्टरेशन की हम बात करते हैं ना, इट इज of course an offense against government only, because if somebody intrudes into the government space, भाई government के जो documents है और उसको alter कर देगा, तो भाई general public is going to be affected. So undoubtedly this is also an offense only. But ये क्या होता है, जो unauthorized information के head के अंदर आता है, so somehow it is a little indirect, and that's why it has been marked by the institute. I'm not trying to justify the institute कि हाँ ये सही आंसर है, but of course if it comes in examination, this is what you have to mark. Although in my personal opinion, भाई ये सारे के सारे साइबर ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, राइट. ओके, तो इसके लिए आपके मार्क्स मैं नहीं काटूंगी, है ना, इंस्टीट्यूट काट सकती है. ओके, moving to question number 37. Come on everyone, the last 3 questions that we have to discuss. After that we have a set of 20 more questions which are very easy. After the session ends, you will just sit back and put a tick mark, and सेशन तो एंड हो जाएगा, बट देयर विल बी कमेंट ऑप्शन, है ना. तो ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स मी, वी ऑल कैन रीड कि भाई वो 20 अटेम्प्ट किए तो उस 20 में आपके कितने स्कोर्स आए, है ना. तो ये भी अटेम्प्ट जरूर करना, छोड़ना मत, ठीक है. बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 37. एक्सेस समवन्स कंप्यूटर without the right authorization of the owner and does not disturb, alter, misuse or damage data or system by using wireless internet connection is called. आप एक्सेस कर रहे हो किसी का कंप्यूटर विदाउट ऑथराइजेशन, दैट्स इट. जैसे मैंने आपको हमेशा ये समझाया है, हाउ टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन. If someone enters your house without authorization, कोई आपका घर का दरवाजा ऐसे खोल के अंदर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? Trespassing, right? The same word has been used in the cyber world also. We have a physical world. Somebody is intruding into our physical space without authorization. That is again trespassing, right? Someone passes by our property. Computer is our property, and someone is entering or accessing the same without right authorization. It is trespassing, right? चोर आया, हाँ, ठीक है. चलो,
जरूरी नहीं है वो गलत इंटेंशन से, हाँ, बट चलो, क्वेश्चन नंबर 38 माय डियर, क्वेश्चन नंबर 38, इन पार्ट बी of the schedule, offenses involved a value of rupees dash is mentioned. तो जब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वी हैव शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, वी ऑल नो दैट, राइट? दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए में क्या आते हैं हमारे आईपीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नार्कोटिक्स, है ना, आर्म्स एक्ट या वाइल्ड लाइफ, दे आर ऑल कवर्ड. पार्ट सी इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स. We are here talking about part B, wherein an amount is mentioned with value of more than or equal to 15 lakhs, 50 lakhs, 75 lakhs or 1 crore. What is the correct answer? अरे क्या बात है, वेरी वेल डन. ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है ना, इससे थोड़ा सा दिमाग बेटा ऊपर उठाना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है. Okay, correct answer is option number D, 1 CR. चलो, 65% स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक आंसर दिया है, तो मतलब आप लोगों को आता है. उसके बाद अगला क्वेश्चन उससे भी आसान, एंड 40th क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको आए, हो सकता है आपको नहीं आए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच स्टूडेंट्स इफ दे रिमेंबर दे आर एबल टू आंसर, इफ दे डोंट दे आर नॉट एबल टू आंसर. बट क्वेश्चन नंबर 39 इज समथिंग विच एवरीवन शुड बी एबल टू आंसर. भाई अगर एग्जाम देने की सच में सोच रहे हो जून में और ये भी नहीं आता, तो मैं क्या बोलूं, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए बच्चों को, बट चुल्लू भर पानी में. STR stands for Suspicious Trade Report, Special Trade Reserve, Suspicious Transaction Reports and Special Trade Reports. इतना तो समझ में आएगा कि बाकी 3 कभी सुने भी नहीं है, एक ही सुना है. चलो देखते हैं, इतना मैंने सुना दिया, उसके बाद भी देखते हैं. हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलो अच्छी बात है. 127 वोट सो फार, 129 वोट सो फार, एंड लेट मी सी 80% स्टूडेंट्स ने तो कुछ कुछ करेक्ट आंसर दे दिया है. भाई देखो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होती है हमारे पास. क्या होती हैं? जो भाई सस्पिशन क्रिएट करें. हम पीएमएलए की बात कर रहे हैं, उन सब की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. भाई किसी ने कुछ क्राइम किया, उसको ट्राइंग टू इंजेक्ट इनटू द बैंक, मतलब बैंक में जाके जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं. वैसे क्या होता है यूजुअली, जो ट्रांजैक्शंस, मतलब आप कैश 10 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शंस है, या फिर कोई काउंटरफीट करेंसी है. काउंटरफीट करेंसी मतलब क्या होता है? जाली नोट. तो अगर बैंक को एक भी जाली नोट मिलता है, तो दैट इज द ट्रांजैक्शन विच मस्ट बी रिपोर्टेड, क्योंकि वहां पे कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही है वो, है ना. कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स. तो बैंक्स को क्या करना होता है? रिपोर्टिंग एंटिटीज आर बैंक्स, राइट? तो दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शंस. फॉरेन करेंसी में 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है, तो दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ दैट. दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर क्लाइंट्स, राइट? दे हैव टू चेक देयर ऑथेंटिसिटी कि भाई ये ठीक है कि नहीं, हमारे साथ कितने टाइम से है, क्या है, कैसा नहीं है, राइट? एंड देन दे ऑल्सो हैव टू डू द फाइलिंग. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं हमारे पास. एंड इसी फाइलिंग को, अच्छा इस क्वेश्चन को आई हैवंट रैप्ड अप. ओके, आई हैव रैप्ड अप, वेरी गुड. क्वेश्चन 39, द करेक्ट आंसर वाज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्वेश्चन नंबर 40 ऑल्सो. तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, वी हैव पीएमएलए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005, उसके अंतर्गत, उसमें, राइट, what we have to do is the reporting authority, or you can say the reporting entity, which is the bank, they maintain certain records and they also have to do certain filing. So they have to send the data, send the KYC data, that is identify their clients, check their authenticity and everything, and they have to send this data to the central registry within how many days? 5, 10, 15 or 20? This is the last question that we are going to discuss today. यार बच्चों की ना अलग ही प्रॉब्लम होती है. अब देखो, गर्मी है तो पढ़ाई स्लो हो रही है, सर्दी होती है तो भाई रजाई में घुस जाते हैं और नींद आती है, तो पढ़ाई और स्लो होती है. तो एक मौसम नया इन्वेंट कर लो जिस मौसम में पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ाई का मौसम, है ना. लाज रख ली हमने आपकी, धन्यवाद.
All the students who are able to understand only English, don't you enjoy this लाज रख ली हमने आपके, समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं? Are you able to understand what I'm trying to say? Okay, anyways, question number 40. Question number 40, my dear. The correct answer is option B. So, as promised, the link or this PDF can now be downloaded. The link has been pinned in the chat, right? So you can go to that link and you can download this PDF. There are 40 questions which we have discussed, and thereafter there are 20 more questions which you are going to practice. It was a fun session, ma'am. I am happy to know that. थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने समय ज़्यादा ले लिया, हाँ नहीं, but I hope you all enjoyed, right? So now, can anyone tell me, is there anyone who has scored all 40 marks or 39 or 38 or anything above 35? 35 या उससे कुछ भी ऊपर आया है क्या? 22 on 40 is my score. I'm so happy to see that you are at least honest, है ना? नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो बढ़ा ही देते हैं. बाकी क्वेश्चन अभी आप ही ले लो बच्चा. They're actually very easy. Vishaka 11 on 40, no problem at all, beta. You don't have to be depressed at all. 36, just trying, and 36. Alok Gupta 37. भाई आई बिलीव दैट इट वॉज योर ऑनेस्ट एफर्ट, और यहाँ पे कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं हुई है. भावना 36. सो आई सैल्यूट यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क. देखो, ट्रस्ट मी, it is not easy to be a CMA final student for some known and some unknown reasons, है ना? So it is actually very difficult, and आप एक बेहतरीन student बने हो. So maintain that consistency, and all others just try to be better, है ना? This, trust me, this wasn't just an MCQ challenge, but it was a challenge to be the best version of yourself, है ना? To push yourself beyond limits and strive for better scores. So whatever you have scored, great. But in the next session, what you have to do is try to score even better, है ना? So I'm sure in the next MCQ round of Companies Act, you are going to simply nail it, है ना? चलो, याद नहीं हो रहा, सब होगा बेटा, डोंट वरी. वन बाय वन आई एम गोइंग टू कम फॉर अ लॉट ऑफ लाइव सेशंस. हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स. So see you all day after tomorrow. Revise well and come prepared. Less or more, it doesn't matter, but what matters is at least you are attempting and facing that challenge. हो सकता है आपने सिर्फ 5 चैप्टर्स ही रिवाइज किए हो, तो भी आओ एंड ट्राई टू अटेम्प्ट. उन 5 चैप्टर्स के तो एटलीस्ट देखो कि सारे क्वेश्चंस में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट? क्योंकि अभी ऐसा भी टाइम नहीं आया है कि यार मैम हमारा 1 घंटा आपने ले लिया. इट्स ओके, यू आर स्टडिंग. This is also a part of your studies only, and this is very much needed for your own self-confidence, for your assessment, for checking, right? तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस को नीचे गिराने के लिए भी जरूरी है, और कभी अंडर कॉन्फिडेंट इंसान को ऊपर लाने के लिए भी जरूरी है ना? Okay, so lots of love and best wishes for your preparation. कुछ भी और बातें हो, और जब आप आफ्टर दिस सेशन यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल दोज 20 क्वेश्चन, तो उसके स्कोर्स भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना. मैं देखूंगी कि यार वो इजी क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. हाउ यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉप इन द कॉमेंट, एंड ट्रस्ट मी आई एम गोइंग टू रीड ऑल द कॉमेंट्स. ठीक है, चलो. सो सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो, राइट? चलो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. Case study usually what comes is of Companies Act portion. So I'll try to incorporate that. Okay. I'm glad to know that I boosted all your confidence. Amazing.